Hello students, in this video we are doing here the numericals on Ventov factor, which is a very important topic for your class 12 as well as competition. The Ventov factor is representing by the symbol I. Now look at the question here. Calculate the depression in freezing point of water when 10 gram of 2-chlorobutanoic acid is added to 250 gram of water. The Ka is given to you, that is 1.4 into 10 raised to the minus 3, and Kf is 1.86 Kelvin kg per mole. Okay, we have to calculate here depression in freezing point. It means we have to calculate here delta Tf when the 10 gram of this substance is dissolved in water. So what does it mean? We are provided here with the Wb, that is the given mass of solute 10 gram. आपने इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है. हम इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं. देयर आर 4 कार्बन 1 2 3 4, सो 12 into 4 हाइड्रोजन 3 2 5 1 6 और 1 7, so plus 7. Chlorine is 35.5. There are 2 oxygen, so oxygen atomic mass is 16 and there are 2 oxygen, so you have to multiply it with 2. आप इसको कैलकुलेट करेंगे. टोटल मॉलिक्यूलर मास कम्स आउट टू बी 122 ग्राम पर मोल. ओके, तो दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस सब्सटेंस. 250 ग्राम ऑफ वाटर, तो सॉल्वेंट इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 250 ग्राम. ओके, now we are placing here the formula delta Tf is equal to I into Kf into m. For this we have to calculate here firstly the molality. Molality is equal to Wb upon Mb into 1000 upon Wa in gram. Wb is the given mass of solute, Mb molar mass of solute and Wa is the given mass of solvent. तो हमें यहाँ solute दिया हुआ है 10. Molecular mass we have already calculated, that is 122.5. 1000 divided by 250, then we will get the molality, that is 0.326 molar. ओके, आपके पास यहाँ पर मोलालिटी आ गई और हमें यहाँ पर Ka दिया हुआ है, तो हम इससे फॉर्मूला लगाएंगे. K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. 1 माइनस अल्फा इज वेरी स्मॉल, सो वी कैन नेग्लेक्ट, so it can be neglected. Okay, so Ka is equal to C alpha square. Ka upon C root is equal to alpha. K हमें given है, that is 1.4 into 10 raised to the minus 3. Molality we have already calculated, that is the concentration. तो आप इसको डिवाइड करके रूट निकाल लेंगे, then you will get the value of alpha, that is 0.065. Okay, now put the value in this. By this we can calculate here I. Alpha is equal to I minus 1 upon n minus 1. n is the number of ions. हमारा ये जो 2-chlorobutanoic acid है, ये अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये डिसोसिएट होगा CH3 CH2, 2 आइंस के अंदर ये डिसोसिएट हो रहा है. ओके, दिस इज 1. फाइन, दिस इज 1 एंड अनदर वन इज H प्लस. तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 2. अल्फा वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, सो 0.065 इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1. देन बाय दिस वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I इज इक्वल टू 1.065. ओके, अब हम अपने फाइनल फॉर्मूले में इसको डालते हैं. डेल्टा Tf इज इक्वल टू I इंटू Kf इंटू m. I is 1.065. Kf is already given, that is 1.86. Molality हमने कैलकुलेट करी हुई है 0.326. Do the calculations by your own, then you will get 0.65 Kelvin. Okay, so this is a very important NCERT question on Ventov factor. तो आपने यहाँ पर पहले मोलालिटी कैलकुलेट करी. मोलालिटी को प्लेस करके आपने अल्फा कैलकुलेट किया, के आपको ऑलरेडी गिवन था. अल्फा कैलकुलेट करने के बाद आपने आई को कैलकुलेट किया और आई की वैल्यू को प्लेस करके आपने डेल्टा Tf कैलकुलेट किया. ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. 19.5 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ वाटर. The depression in freezing point observed is 1 degree Celsius.
Calculate the Vent-Hoff factor and the dissociation constant. So we are provided here with the WB, that is 19.5 gram, and we have to calculate here the molecular mass of this compound. Carbon, there are 2 carbon atomic mass is 12, there are 2, so you have to multiply it with 2. Fluorine is 19, hydrogen 2 or 1 3 plus 3, oxygen 16 into 2 32. Then you will get 78 gram per mole. इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, आपको यहाँ वाटर का मास भी दिया हुआ है, कितने वाटर में उसको डिसॉल्व किए हैं, 500 ग्राम. ओके, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज 1, तो डेल्टा TF इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 1 डिग्री सेल्सियस. वी हैव टू कैलकुलेट हियर I that is Vent-Hoff factor and the dissociation constant, that is K. Fine. Now look at the formula here. Delta TF is equal to I into KF into M. So we have to calculate here molality again. WB upon MB into 1000 upon WA in gram. WB is 19.5. Molecular mass is 78 into 1000 divided by the solvent 500. You will get the molality, that is 0.5 molar. ओके, आपने यहाँ पर इससे मोलैलिटी कैलकुलेट कर ली. अब हम इस मोलैलिटी को यूज कर आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. डेल्टा TF इज इक्वल टू आई डेल्टा TF डिवाइडेड बाय KF इंटू M. ओके, डेल्टा TF इज गिवन टू अस, दैट इज 1, KF इज 1.86. मोलैलिटी वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, मोलैलिटी हमने ऑलरेडी यहाँ कैलकुलेट कर ली है, दैट इज 0.5. तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करके इसको I को करेंगे तो हमारे पास I आ गया 1.075. नाउ अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1. सेम अगेन, इट इज एन एसिड. प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये भी हमारे पास एसिड है. अगर हम इसको वाटर में डिसोसिएट करेंगे तो ये हमारे पास डिसोसिएट होगा, ये हमारे पास डिसोसिएट होगा COO माइनस एंड H प्लस. So again the value of N, this is one ion and this is another, so the value of N is equal to 2. I हमने कैलकुलेट कर लिया. अल्फा इज इक्वल टू 1.075 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, देन वी गेट द अल्फा, दैट इज 0.075. After that, K is equal to C alpha square upon 1 minus alpha. 1 minus alpha is again very small, so we can neglect it because it is very small. Okay, so K is equal to C alpha square. K upon C root is equal to alpha. सॉरी, हमें यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट K कैलकुलेट करना था, तो हम डायरेक्ट ही कैलकुलेट कर लेते हैं. The C we have already calculated, that is 0.5. Alpha is 0.05. Fine. So it is alpha square, तो हमने उसका स्क्वायर कर दिया और हम इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.835 into 10⁻³ दैट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट. आप दोनों क्वेश्चंस में पहले मोलैलिटी कैलकुलेट करिए. ठीक है, मोलैलिटी के बाद हमने यहाँ पर I को कैलकुलेट किया है. I से हमने अल्फा कैलकुलेट किया. अल्फा के बाद हमने लगाया K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. सो 1 माइनस अल्फा इज वेरी स्मॉल, सो वी कैन निग्लेक्ट इट. K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर. C इज मोलैलिटी. अल्फा हमने कैलकुलेट कराई है 0.075, स्क्वायर करके हमारे पास आंसर आ जाए. ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. Now look at the next question here. 2 gram of benzoic acid dissolved in 25 gram of benzene shows a depression in freezing point equal to 1.62 Kelvin. आपको यहाँ पर 2 ग्राम बेंजोइक एसिड डिसॉल्व किया है इन 25 ग्राम बेंजीन. तो सॉल्वेंट हमारे पास कितना हो गया, 25 ग्राम. शोज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा TF 1.62 Kelvin. KF is already given, that is 4.9.
What is the percentage association of acid if it form dimer in solution? आप उसका परसेंटेज एसोसिएशन कैलकुलेट करिए अगर आपको वो सब्सटेंस डाइमर बनाता है सॉल्यूशन में. ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजोइक एसिड, दैट इज C6H5COOH. ओके, सो वी कैन कैलकुलेट हियर द मॉलिक्यूलर मास. कार्बन 6 और 1 7, 12 into 7, हाइड्रोजन 5 और 1 6, ऑक्सीजन 16 into 2 32, you will get 122 gram per mole. ओके, तो दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड. अब वो डाइमर कैसे बनाता है? वो ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू दिस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट फॉर्म्स डाइमर. ये हमारे पास ऑक्सीजन नेगेटिव पॉजिटिव, इट्स पॉजिटिव नेगेटिव, ये इसने डाइमर बना दिया. डाइमर बनाने से हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर सिंगल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया. तो 1/n इज इक्वल टू 1/2. Fine, we will use that later on to calculate the alpha. Now come to the question again. Put the formula. Delta TF is equal to I into KF into molality. Molality को यहाँ हम open कर रहे हैं. WB/MB into 1000 upon WA in gram. Okay, the delta TF is already given to you. That is 1.62. तो आप इससे पहले I की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं. तो हम फॉर्मूले को इधर शिफ्ट कर रहे हैं. डेल्टा TF MB WA KF WB 1000 is equal to I. Okay, डेल्टा TF is 1.62, मॉलिक्यूलर मास 122, सॉल्वेंट हमें गिवन है 25 ग्राम ऑफ बेंजीन और KF गिवन है हमारे को 4.9, WB is 2 and 1000. Okay, put the value, then you can calculate the I. I comes out to be 0.504. Okay, 504. Now it is a case of association. तो एसोसिएशन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा? अल्फा इज इक्वल टू I minus 1 1/n minus 1. We have already calculated the I. Put the value of I here, 0.504 minus 1. Due to intermolecular hydrogen bonding, 2 molecules combine together to form 1. ठीक, डाइमर मीन्स 2 मॉलिक्यूल मिलकर एक बना रहे हैं. तो यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाफ. नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी हाफ. तो आप अब इसने आपसे कैलकुलेट करने को कहा है इन परसेंटेज, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100 एंड गेट द आंसर 99.2%. नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. Determine the amount of CaCl2. I is given to you, that is 2.47, dissolved in 2.5 liter of water such that its osmotic pressure is 0.75 atm at 27 degree Celsius. ओके, आपके पास कितना आपने CaCl2 जिसकी I की वैल्यू वेंटो फैक्टर की वैल्यू आपको गिवन है 2.47, उसको आप 2.5 लीटर वाटर में डाल रहे हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर 0.75 atm हो जाए 27 डिग्री सेल्सियस पर. ओके, यू आर प्रोवाइडेड हियर विद द I, सो दिस इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला. पाई इज इक्वल टू I WB/MB RT over V. ओके, आफ्टर दैट I is given to you, that is 2.47. R is constant, that is 0.0821 liter atmosphere per Kelvin per mole. R की वैल्यू कांस्टेंट होती है, आपको पता होनी चाहिए. टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस. यू हैव टू ऐड 273 टू गेट 300 केल्विन. आपको टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हुआ है, आप 273 ऐड करके उसे केल्विन कर लेंगे. पाई इज गिवन टू यू 0.75 atm. Okay, this is the formula of calcium chloride. So we have to calculate the molecular mass. Calcium is 40, chlorine 35.5. There are 2 chlorine, so you have to multiply it with 2. That is 71 plus 40, 111 gram per mole. तो आपने इसका molecular mass solute का calculate कर लिया. आपको WB कैलकुलेट करना है. WB is the amount of CaCl2 dissolved. तो अब हम फॉर्मूले को इधर कर लेते हैं. पाई MB into V
MB into V divided by IRT is equal to WB. Now put the value here. Pi is 0.75, molecular mass is 111, volume is 2.5 लीटर, वॉल्यूम आपको गिवन है 2.5 लीटर, I is 2.47, R is 0.0821, temperature 300. Do the calculations, this is liter, do the calculations, then you will get 3.42 gram. So 3.42 ग्राम ऑफ CaCl2 आपने डिजोल्व किया 2.5 लीटर वाटर में कि उसका ऑस्मोटिक 27 डिग्री सेल्सियस पे 0.75 ATM हो जाए. ओके, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड which must be added to 1 kilogram of water so that the freezing point of water is depressed by 3 Kelvin. Kf is 1.86 Kelvin kg per mole. हम कितना सोडियम क्लोराइड डिजोल्व करेंगे 1 kg वाटर में कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट 3 केल्विन कम हो जाए. ओके, तो वी हैव टू कैलकुलेट हियर WB, दैट इज द अमाउंट ऑफ NaCl डिजोल्व. सॉल्वेंट इज 1 kg or you can say 1000 gram. Delta TF is 3 Kelvin. Kf is constant 1.86. This is a question of sodium chloride. अगर इस क्वेश्चन में कहीं पर डिसोसिएशन वर्ड नहीं लिखा हुआ और तो ज़्यादातर बच्चे इसके अंदर ये मिस्टेक करते हैं कि सोडियम क्लोराइड, उन्हें याद नहीं रहता कि सोडियम क्लोराइड इज एन इलेक्ट्रोलाइट, सो व्हेन इट डिसॉल्व्स इन वाटर इट डिसोसिएट इनटू Na+ एंड Cl-. ओके, सोडियम क्लोराइड आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, वो डिसोसिएट होगा Na+ और Cl- में. तो आपके पास यहाँ पर I की वैल्यू 2 आ गई. आप उसको एज्यूम करके चलेंगे दैट इट इज कम्प्लीटली डिसोसिएटेड. ठीक है, वो वाटर में कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहा है. तो काफ़ी सारे बच्चे इस बात को गलत कर देते हैं और वो फॉर्मूले में I की वैल्यू को कंसिडर नहीं करते. सो look at the formula here, that is of depression in freezing point. Delta TF is equal to I into Kf, WB upon MB into 1000 upon WA in gram. Okay, but you have already provided in kg, तो आप उसको अगर kg में रखेंगे तो यहाँ 1 kg कर लेना. ठीक है, तो ये 1000 ऊपर से हटा देंगे. अब मैंने लिख दिया तो इसको 1000 ग्राम कर देते हैं. तो डेल्टा, अब फॉर्मूले को सबको इधर ले जाते हैं. डेल्टा TF MB मल्टीप्लाई विद WA डिवाइडेड बाय I into KF into 1000, that is WB. Now put the value here. Delta TF is 3. Molecular mass of NaCl, sodium is 23, chlorine 35.5. So the total molecular mass comes out to be 58.5 gram per mole. आपके पास इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया 58.5. सॉल्वेंट आपको दिया हुआ है 1000 ग्राम, 1 kg और 1000 ग्राम आप कुछ भी लिख सकते हैं. I की वैल्यू आपके पास 2 इंटू 1.86 इंटू 1000. देन डू द कैलकुलेशन एंड यू विल गेट द मास ऑफ सॉल्यूट, दैट इज 47.2 ग्राम. ओके, बट यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा, ये इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए आप ये क्वेश्चन वेंट ऑफ फैक्टर अप्लाई करके करेंगे. नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. द डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड इज 50%. डेसीमोलर सॉल्यूशन, डेसीमोलर मीन्स 1/10 और यू कैन से 0.1 मोलर. डिसोसिएटेड एट 300 Kelvin. कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. ओके, अब आपको यहाँ पर वर्ड डिसोसिएटेड लिखा है इसलिए आपको पता चल गया कि हमें फॉर्मूले में I लगाना है. पाई इज इक्वल टू ICRT. कंसंट्रेशन हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है. डेसीमोलर मीन्स 0.1 मोलर, 0.1 मोलर. पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4 FeCN6. दिस इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. अगर ये आयोनाइज करेंगे तो ये डिसोसिएट होके बनाएगा 4K+. जो ब्रैकेट के बाहर है वो अपने आइंस अलग से बनाएगा, तो ये बनाएगा 4K प्लस FeCN6 4 माइनस. तो N आपके पास 4 पोटेशियम
और 1 ही, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5. नाउ पुट द वैल्यू अल्फा इज इक्वल टू i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1. अल्फा आपको गिवन है क्वेश्चन में 50% वो डिसोसिएट हो रहा है, 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा कि हम n की वैल्यू डायरेक्ट 5 ले लें, वो 50% डिसोसिएट हो रहा है. तो अल्फा इज 50, i माइनस 1, 5 माइनस 1, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ i 3. आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास i की वैल्यू 3 आ जाएगी. अब इसको हम यहाँ पर डाल देते हैं. पाई इज इक्वल टू 3 इंटू 0.1, आर की वैल्यू कांस्टेंट है 0.0821. टेम्परेचर इज गिवन टू यू दैट इज 300. डू द कैलकुलेशंस, देन यू विल गेट 7.389 atm. ओके, तो दिस इज द पोटेशियम फेरोसाइनाइड. वो अपने 5 आइंस में डिसोसिएट हो रहा है, तो आप n की वैल्यू को 5 रखेंगे और i की वैल्यू को कैलकुलेट कर कर मेन फॉर्मूले में डालेंगे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन aqueous solution of 10.50 gram of MgBr2 in 200 gram of water. The molecular mass of MgBr2 is given to you, that is 184 gram per mole. Kf is 1.86, it's constant. Okay, तो आपको यहाँ पर MgBr2 का क्वेश्चन दिया है, वही सेम जो हमने इस क्वेश्चन में किया था सोडियम क्लोराइड वाले में. यहाँ पर फिर बच्चे थोड़ी सी ये मिस्टेक कर देते हैं कि MgBr2 इलेक्ट्रोलाइट है, वो वाटर में डालोगे तो डिसोसिएट होगा Mg2 प्लस और 2Br माइनस. तो n की वैल्यू हमारे पास, अगर हम एज्यूम कर लें कि ये कम्प्लीटली 100% डिसोसिएट हो रहा है, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, क्योंकि ये 3 आयंस जनरेट कर रहा है, एक मैग्नीशियम और 2 ब्रोमाइड. तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 3. ओके, नाउ पुट द फॉर्मूला हियर. तो डेल्टा TF इज इक्वल टू, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन. तो डेल्टा TF इज इक्वल टू I KF WB अपॉन MB इन 2000 डिवाइडेड बाय WA इन ग्राम. ओके, तो हमारे को यहाँ पर I की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, दैट इज 3. KF इज 1.86. MgBr2 हमें गिवन है, द मास ऑफ सॉल्यूट इज 10.50. मॉलिक्यूलर मास इज ऑलरेडी गिवन 184 इन 2000. कितना वाटर दिया हुआ है 200 ग्राम ऑफ वाटर. तो हमें इसका सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है 200 ग्राम. तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ गया 1.59 डिग्री सेल्सियस, और वी कैन से 1.59 केल्विन. ओके, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन. ये तो हमने क्या निकाला है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. अब हम फॉर्मूला डालेंगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू T0F माइनस TF. TF को हमें कैलकुलेट करना है, इसको इधर ले जाते हैं. सो TF इज इक्वल टू T0F माइनस डेल्टा TF. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर कितने पे फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 में से उसको माइनस कर दो 1.59 को, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस 1.59 डिग्री सेल्सियस. और अगर आप केल्विन में करेंगे तो इसको 273.15 में से माइनस कर देना, तो आपके पास केल्विन में आ जाएगा 271.41 केल्विन. Now look at the very important numerical of your NCERT. Determine the osmotic pressure of a solution prepared by dissolving 25 milligram of K2SO4 in 2 liter of water at 25 degrees Celsius, assuming it is completely dissociated. So dissociated word here shows that it is an electrolyte. K2SO4 is an electrolyte and it dissociates into 2K plus and SO4 2 minus. So it is completely dissociated. That's why the value of I is 3. Okay, now we are calculating here the molecular mass of K2SO4. Potassium having 39 and there are 2 potassium 2K. Sulfur atomic mass is 32. Oxygen 16. There are 4 oxygen, so you have to multiply it with 4. Now you will get the molecular mass, that is 174 gram per mole. That is the molecular mass of K2SO4. आपके पास यहाँ पर वर्ड लिखा है dissociated, it means it's an electrolyte, so you have to place here the value of I.
अगर ये वर्ड नहीं लिखा होता तो बहुत से बच्चे I की वैल्यू को नहीं डालते, क्योंकि उन्हें याद नहीं रहता कि K2SO4 इज एन इलेक्ट्रोलाइट। ओके, now look at the formula here. We have to calculate the osmotic pressure. So the formula here is equal to pi WB upon MB RT over V. I is 3, WB, that is a given mass of solute 25 milligram. It is given to you in milligram, so you have to divide it by 1000. आपको मिलीग्राम में गिवन है, आप उसको 1000 से डिवाइड करके ग्राम में कन्वर्ट कर लोगे। वॉल्यूम इज गिवन टू यू 2 लीटर। टेम्परेचर इज गिवन टू यू 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन टेम्परेचर आपको लेना किस में चाहिए, केल्विन में। तो 25 प्लस 273 दैट कम्स आउट टू बी 298 केल्विन। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ WB, that is 25 into 10 raised to power minus 3. Molecular mass we have already calculated 174. R value is constant, that is 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ओके, R की वैल्यू कांस्टेंट होती है तो आपने डाल दिया 0.0821। टेम्परेचर दैट इज 298। वॉल्यूम इज ऑलरेडी इन द लीटर, सो यू हैव टू डिवाइड इट बाय 2। देन on solving this, on doing the calculation, you will get 5.27 into 10 raised to power minus 3 atm. That is the answer of this question. Okay, now look at the next one here. 0.6 ml of acetic acid, density is given to you 1.06 in gram per milliliter, is dissolved in 1 liter of water. The depression in freezing point observed for this acid was 0.0205 degrees Celsius. So this is the depression in freezing point. So you are provided here with the delta TF 0.0205 degree Celsius. Calculate the Venthoff factor. So we have to calculate here I and the dissociation constant, that is K, and Kf is given to us, that is 1.86. Okay, now look at the numerical here. This is the depression in freezing point, so we have to put here the formula delta TF is equal to I into Kf into M. delta TF हमें यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, I हमें कैलकुलेट करना है, Kf भी गिवन है। सो फॉर दिस फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट हियर मोलैलिटी. So the formula of molality is equal to WB upon MB in 2000 upon WA in gram. WB is the given mass of solute, MB molar mass of solute, WA is the given mass of solvent. Okay, now look at the question again. 0.6 ml of acetic acid, density is 1.06. It means आपको यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है और आपको डेंसिटी गिवन है, तो यू हैव टू कैलकुलेट हियर द मास ऑफ सोल्यूट. तो आप WB खुद कैलकुलेट करेंगे. WB हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. तो डेंसिटी इज 1.06, वॉल्यूम हमें कितनी दे रखी है 0.6. ऑन मल्टीप्लाइंग यू विल गेट 0.3636 ग्राम. आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना तो आपके पास मास ऑफ सोल्यूट आ गया 0.636 ग्राम. Now for the water is given to you 1 liter. 1 liter means 1000 gram. 1000 gram. वाटर की डेंसिटी भी कितनी होती है 1. तो आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट, वाटर का मास कितना आ गया 1000 ग्राम. तो वी आर कैलकुलेटिंग हियर द मोलैलिटी. मोलैलिटी को हम कैलकुलेट कर रहे हैं. WB हमने कैलकुलेट किया 0.636. मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड, दिस इज द सिंबल ऑफ एसिटिक एसिड. This is the formula CH3COH. Carbon atomic mass 12. There are 2 carbons, so you have to multiply it with 2. Hydrogen 4. ठीक है, हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, so multiply it by 4. Oxygen is 16. 16 into 2 32. So the total molecular mass of acetic acid is 60 gram per mole. You have to memorize that. It's a very common example. तो आप इसका मॉलिक्यूलर मास एसिटिक एसिड का लर्न कर लो. यूरिया का और एसिटिक एसिड का 60 आता है, तो हमने यहाँ पर 60 डाल दिया. मास ऑफ सॉल्वेंट, डू द कैलकुलेशंस, देन यू विल गेट द 0.0106 मोलैलिटी.
अब आपके पास मोलैलिटी आ गई, आपने डेल्टा TF वाले फॉर्मूले में अब इस मोलैलिटी को प्लेस कर दिया, तो हमारे पास डेल्टा TF ऑलरेडी गिवन था 0.0205 डिवाइडेड बाय KF दैट इज 1.86 इंटू M 0.0106 वी विल गेट I। इन दोनों को डेल्टा TF को KF इंटू M से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास I की वैल्यू आ जाएगी। आप सॉल्व करेंगे, डू द कैलकुलेशंस, देन यू विल गेट I इज इक्वल टू 1.04। ये आपके पास I की वैल्यू आ गई। अब हमने फॉर्मूला लगाया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन N-1। सो दिस इज अ क्वेश्चन हियर ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को अगर आप वाटर में डिसोसिएट करेंगे, सो एसिटिक एसिड ऑन डिसोसिएशन इन वाटर गिव राइज टू 2 आइंस। तो आपके पास N की वैल्यू क्या हो गई 2, 1 और 1 2। तो प्लेस द वैल्यू ऑफ N हियर 2, I वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। तो अल्फा इज इक्वल 1.04 माइनस 1, 2 minus 1, then you will get the alpha that is 0.04. Okay. In the second part we have to calculate the dissociation constant. हमें dissociation constant इसमें calculate करना है। तो dissociation constant का फॉर्मूला हुआ K is equal to C square alpha square, or you can say this one C square alpha square C1 minus alpha because it is an acid. Okay, so concentration we have already calculated, that is 0.0106, 0.0106, alpha is 0.04, concentration 0.0106, 1 minus 0.04 that comes out to be 0.96. ओके 0.96। तो आप इसको कैलकुलेट करें, डिवाइड करें और फिर आपके पास आंसर आ जाएगा 1.86 इंटू 10⁻⁻⁵। दैट इज द वैल्यू ऑफ K फॉर दिस क्वेश्चन।